Now here, since it is a even के अंदर अगर मैं h ही रखूं तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, और वो पॉइंट आएगा तो इट विल बी इन सेंटर, आपका वापस से डेटा पे नहीं जाएगा, परफेक्ट ईयर पे नहीं होगा, ईयर इज व्हाट चेंजिंग, इसके लिए इंटू 2 करके उसको राउंड अप किया जाता है। पर हम लोग अगर देखते हैं 1976 का 7 आया तो 77 का क्या आएगा, जस्ट सी 1977 का क्या आएगा, it will be -5 इंटू 2, सो इट विल बी व्हाट -5, तो 78 का क्या आएगा, -3 -1 and then again 79.5, so it will be what -3, 79 का क्या आएगा, 1979 ના ખાલી સમજાવવા માટે -1 2 टाइम्स, પછી અહીંયા કોઈ પૂછું કે આમ કેમ કરો છો તમે, 1979 का हो गया, 79 के बाद 80 का रहेगा तो क्या आएगा 1979.5, तो वो इट विल बी व्हाट 1। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, दैट हियर -7 के बाद डायरेक्टली क्या होता है -5 -3 -1 1, so you can see even में your u will increase by 2, even में your u will increase by 2, u का वैल्यू 2 से बढ़ते जाएगा, ऑड में u का वैल्यू 1 से बढ़ता है, और इवन में u का वैल्यू 2 से बढ़ता है, बाकी पूरा सम इज व्हाट सेम, फुल सम इज सेम, बाकी फुल सम इज व्हाट सेम। तो ईयर, नाउ आई होप सो यू कैन स्टार्ट विद द सम ईयर, और यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन YT इन मिलियंस, फिर आपका क्या था U, फिर UYT, और बाद में क्या था U²। आपको यहाँ पर समझ में आता रहेगा, इट इज इंक्रीजिंग बाय व्हाट -7 -5 -3 -1 1 3 5 7, यहाँ पर भी देखो आंसर 0 ही आएगा, यहाँ पर भी वो 0 ही आएगा, एंड दैट्स व्हाई हियर u इज व्हाट फॉर्मूला इज डिफरेंट, इवन के लिए h/2 है, ऑड के लिए खाली डिवाइड बाय h है, दैट केयर यू शुड टेक। बाद में नाउ क्या आएगा, पुट सब्मेशन ऑफ YT कितना आएगा, देखो सब्मेशन ऑफ u मुझे मिल गया 0, सब्मेशन ऑफ UYT is 121 is 121, and u² is 168. नहीं, somewhere wrong, something wrong, u² 168 नहीं आता, and n कितना है, n is 8, n is 8, सर YT 139 આવે છે, YT 139 पक्का, okay, summation of YT is equals to NA dash plus summation of B summation of U, तो ये आपको 139 आया, equals to 8N 8A B into 0, so A equals to 139 upon 8, तो कितना आएगा वो डिवाइड करके बोलो। Sir, u² 168 જ આવે છે। સર 168 જ આવે છે u²। Okay, no problem. Sister is doing right job. So summation of UYT is equals to A dash summation of U plus B dash summation of U²। तो यहाँ पर 121 is equals to A dash into 0 plus B dash into 168. So what will be your B dash 121 upon 168? A division करવું જ પડશે. Therefore, trend equation is
compulsory u equals to 2 times t minus 1979.5. फिर बाद में और आगे क्या फाइंड करने का बोलो। જૈનમ શાહ સર મારા ઘરે વાઈફાઈ નથી ચાલતું એટલે મેં ઓફ રાખ્યું છે વિડિયો. તું મને પેલા હોમવર્ક મોકલ મને. હા મોકલો. ધ્રુવી ભાનુશાલી तू हमेशा क्यों जल्दी भाग जाती है? કાલે એક મિનિટ કાલે પણ હું 100 સમ કરાવતા હતા ત્યારે જ રહી મારું 100 અને 101 બે થઈ જાય એટલે લાસ્ટ સમ હતા. अच्छा जरा देखाड़ होमवर्क देखा शो योर होमवर्क. सर यार नहीं करो ना स्पॉटलाइट. होमवर्क देखाड़ स्पॉटलाइट में होमवर्क देखाड़. मारा केनु बेसम होमवर्क देखाड़. मारू 5th and 6th होमवर्क देखाड़. Show me your homework. not કર્યું. So nice of you. Then you don't have a right to sit in my lecture, do you know? અરે સાંજ સુધી રહીને મોકલી દે. પછી હવે આજનો વિડિયો સાંજના તું જોઈ લેજે. બાય. Sir, A dash 17.375 છે. A dash 17.375. तो 38 कर दे 17.38. B dash ओ रिंकी आई सर मोबाइल ले लियो कई काम हશે જ નહીં પેલા મને ટાઈમ सीरीज देखा 17.37 લખે તો सारा ચાલશે. टाइम सीरीज देखा मोबाइल आप सर मोबाइल ले लियो બેન નો टाइम सीरीज લઈ આવજે टाइम सीरीज દેખાડજે ને મોબાઈલ લઈ જજે. આ તો રાજસ્થાની ટોપિક છે મારો ટોપિક क्या છે સર પ્રેક્ટિસ છે બોલ ભાઈ. આ તો તારા ફ્રેન્ડ ની બુક લઈ આવી તો રિંકી આજે ધ્રુવ જોગી ને હોમવર્ક મોકલ્યું હતું. ધ્રુવ જોગી ને હોમવર્ક મોકલ્યું હતું આજે એ તો કર્યું બી નહીં હશે ને. હા એ જ તો મોબાઈલ રાખી દો. કેમ બનતી નથી? મમ્મી પપ્પા એને લગ્ન વહેલા વહેલા કરાવી દેવા છે તો વાત કરું તારા મમ્મીને તમારા છોકરીને લગ્ન કરાવી દો ક્યાં એને ટેન્શન અપાવો છો? 18 વર્ષની તો નેક્સ્ટ યર થઈ જશે. છોકરો ગોતવાનું ચાલુ કરો. 18 વર્ષે લગ્ન 21 વર્ષે છોકરાઓ. છોકરો 15 વર્ષનો when you are in 36 years age તમારો છોકરો મોટો થઈ જશે 10th માં આવી જશે. You will be free to enjoy your life. સર હા સર આ જે ફોર્થ કોલમ છે ને ટેબલમાં એકવાર ફિલ કરો ને. કેમ તને સ્ક્વેર લખતા નથી આવડતું? 49 36 અરે સર એ વાળો સર હા વીડા શું આવે છે? કયું? વીડા શું આવે છે? Sir, આ થઈ ગયું આ તારું થઈ ગયું 0.72 શું આવે છે? 0.72 આવે છે ને 0.72 તો તે હોમવર્ક કયું છે યશરાજ? યશરાજ શું ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે લોકોએ? number of subscribers in the year 1984. So how we will solve? When t equals to 1984
Therefore, U equals to 2 into 1984 minus 1979.5. तो कितना આવશે U equals to 9 આવશે 9. Therefore, Y 1984 equals to 17.38 plus 0.72 into 9. 9 છે કે કેટલો આવશે જરા બોલો 9 આવશે કે કેટલો આવશે 9 જ આવે છે 9 જ આવે છે તો 9 into 0.72 24.26 શાયદ કેટલો એટલે ફાઇનલ આન્સર 24.26 ના ના 24 કે 23 આવશે ક્યાંથી એડ કરી દીધું અહીંયા 6.4 6.48 6.48 એટલે 23.86. Therefore, average number of subscriber Y equals to 1984 આવશે. Therefore, average number of subscriber in 1984 will be 23.86 million. 23.86 million. I think so. 101% we had done with the sums. We are happy with the sums. We had done the things very nicely, properly, perfectly. इधर भी कुछ भी problem नहीं है. आपने जो किया वो आपको परफेक्टली आया और आया और आया 101. पर अभी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वो है कि क्या पढ़ा हमने और क्यों पढ़ा हमने. That was the biggest thing. What is the time series? Can anyone tell me what is the time series? आपने इतना सारा चीज किया. What is the time series? ये कहाँ पर काम आता है? to know the position of the business Position of a overall business. position of business Analyze करवा business Overall position of business. Okay. और sums देख के आपको क्या समझा? Statistic, which is not only for business, for anything. For anything. मतलब for economical, for social. Both the things we can use the time series to know their performance. Anything else we can see with the help of time series? Growth rate. Everyone should participate. Only 1 or 2, 3 people are participating. It is not good. It shows that other people are not understood. Loan लेने के लिए काम आएगा. Okay. So that we can say performance देख के कोई आपको लोन देगा. Okay. The stock market. स्टॉक मार्केट कसम से बोलता हूँ ये स्टडी आज करने बैठ जाओ आप लास्ट 5 बरस का के 10 दिन का स्टॉक ले लो. एक कंपनी पकड़ो. एक कंपनी का क्लोजिंग एवरीडे का क्लोजिंग आप लिखो. उसका आप क्या करो लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड करो कि नेक्स्ट क्लोजिंग उसका क्या आएगा. खेलने का नहीं है. वी डोंट हैव टू पुट द मनी इन द मार्केट. जस्ट सी कि अपना पढ़ाई क्या ये चीज मैच होता है कि नहीं होता है. यू विल फाइंड लिटिल बिट मैच होता है क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गेम प्ले करते हैं. वो फैक्टर्स को हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं बिजनेस के अंदर. खाली एक ही फैक्टर नहीं होता है. खाली फिगर आउट वो फिगर्स को फ्लक्चुएशंस को हम लोग स्टडी करके बोल सकता है कि मेरा स्टॉक मार्केट अगर पास्ट में इस तरह से चल रहा है 1 महीने से इस तरह से चल रहा है तो फ्यूचर में क्या होगा. 1 महीने का डेटा लो. 2 दिन 10 दिन का डेटा लेके मतलब नहीं है. या तो हर महीने का 2 डेटा लो एंड देन चेक कि उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस शेयर मार्केट में कैसा चलता है. आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं 101%. पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो आगे चल के आपको सिखाया जाएगा. पर टाइम सीरीज क्या है आपने बहुत क्लियरली देखा 40-50 सम्स हम लोग ने कर दिए शायद से. और वो 50 सम्स में आपने देखा कि data which was given in the time series was in a fixed interval of time.
कहीं पर भी डेटा वॉज नॉट इन नॉन यूनिफॉर्म नहीं था, डेटा वॉज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म डेटा मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में वो डेटा दिया गया था। एंड यू आर स्टडी ऑफ व्हाट, इकोनॉमिकल पैरामीटर। पर खाली इकोनॉमिकल पैरामीटर नहीं दिया वो लोग ने, और सोशल पैरामीटर्स के बारे में भी बात किया, लाइक योर डेथ रेट वो लोग ने स्टडी किया। आप देख सकते हैं आजकल कोरोना में वो लोग बोलते हैं कि ग्राफ फ्लैटन हो गया है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो बीएमसी का आता है कि एवरेज पॉजिटिविटी रेट इज दिस मच। ये सब चीज निकलता है कहां से? ये सब चीज आता है टाइम सीरीज से। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, studying the data over the period of time, studying और भी अच्छा वर्ड analyzing the data, मतलब टाइम सीरीज क्या है? इट इज analyzing the data, यूनिफॉर्म डेटा मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, ओवर द इकोनॉमिकल पैरामीटर एंड द सोशल पैरामीटर। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज। तो क्वेश्चन अराइज, टाइम सीरीज का फायदा क्या है? So if you will see what are the advantage of time series, what are the advantage of what time series? Time series का advantage क्या क्या है? एक मिनट। हेलो, एडवांटेज क्या है? इसका यूज क्या है? एडवांटेज क्या है? तो सबसे पहला अगर बात करते हैं हम लोग एडवांटेज का, तो क्या आएगा एडवांटेज इसमें? तो एडवांटेज इज ऑल एंड ऑल अबाउट योर पास्ट बिहेवियर। हमें इसका पास्ट बिहेवियर समझ में आता है कि ये बंदा चल कैसा रहा है, ये बंदा का बिजनेस कैसा चल रहा है, ये पास्ट बिहेवियर है क्या, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, और क्या है क्या नहीं है, उसमें हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। पास्ट बिहेवियर, वेरी नाइसली वी आर अंडरस्टैंडिंग द पास्ट बिहेवियर फ्रॉम द डेटा। दूसरा, वो देख के, पास्ट बिहेवियर को देख के हम लोग बहुत सारा चीज एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं, एग्री और नॉट? सो फोरकास्टिंग द बिजनेस, हम लोग बता सकते हैं अभी तेरा बिजनेस है ना ऐसा चलेगा, ज्योतिष बन जाएगा। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोरकास्टिंग करने वाला बिजनेस बंदे को क्या बोलते हैं मालूम है आपको? एस्ट्रोलॉजर। अरे एस्ट्रोलॉजर थोड़ी होता है, बिजनेस में बोलो प्रिडिक्शन करने वाले को क्या बोलते हैं? एनालिस्ट। जो बंदा पास्ट बिहेवियर को देख के फ्यूचर बोलेगा उसको, और आप उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? उस बिजनेस को भी बोलते हैं, मालूम है क्या है वो बिजनेस का नाम? फाइनेंशियल कंसल्टेंट। कंसल्टेंट बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस, दिस इज कॉल्ड एज अ कंसल्टिंग बिजनेस। कोई बड़ा कंपनी का नाम मालूम है क्या कंसल्टिंग बिजनेस में? बहुत बड़ा फंड्स, टाटा कंसल्टेंसी, मैकेंजी, महिंद्रा, ये सब कंसल्टिंग। अरे सबसे बड़ा नाम आज सब बच्चे लोग जाने को दिल करता है, जाओ सैटरडे संडे हॉलीडे, दारू भी वो लोग के नाम पे पीने का मिलता है, मालूम है कौन सा? मैकेंजी, जेबी मॉर्गन, ये सब बड़े बड़े कंपनी, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आर व्हाट? दे आर कंसल्टिंग कंपनी इन विच people are sitting, the people whose this is powerful, analyzing things is powerful, और analyzing things में powerful में एक tool क्या है तुम्हारा? time series. This is the one of the tool which makes you powerful if you study these things properly. आज नहीं, 5 साल के बाद आप उसको याद करेगा, अरे सर ने जो बताया था ना, अभी धुल्ला सा याद है साला, इतना याद निकल ही रहा था, फोन भी आया था, सर आपने जो सिखाया था ना वापस एक बार ब्रीफिंग करने को आने का। अभी मेरे को वही सब चीजें जो आपने सिखाया था, बस मुझको आप आके ब्रीफिंग करा के, तो आधा घंटा आपका मुझको दो है, जरूरी है। आप क्यों भूल गए हो? क्योंकि आज सिखाऊंगा ना, ये सब चीज काम आने वाला है 3 या 4 साल के बाद। साला 2 दिन पहले क्या कपड़ा पहना था वो याद नहीं रहने वाला है, तो 4 साल के बाद थोड़ी याद रहेगा। तो जिसको याद रह जाता है ना वो कमा जाता है पैसा,
ये चीज वही है, क्या है, इकोनॉमिकल पैरामीटर का पास्ट बिहेवियर देख के फोरकास्टिंग करना। फिर नॉट ओनली दैट फोरकास्टिंग, इसके साथ कंपैरेटिव भी करते हैं हम। कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ कंपैरेटिव स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई कंपैरेटिव स्टडी इज इंपॉर्टेंट? क्यों कंपैरेटिव स्टडी इंपॉर्टेंट होगा? कंपैरेटिव स्टडी से ही सर हमें दो कंपनी को हमारा, कंपेयर करते हैं कि किसका प्रोग्रेस ज्यादा हुआ। अरे हम तो कंपैरेटिव हमारे स्टडी के अंदर ही करेंगे, कंपनी के अंदर ही करेंगे कंपैरेटिव। पता है क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता? इम्प्रूवमेंट लाने प्लानिंग करने के लिए कंपैरिजन इज डन फॉर द प्लानिंग फॉर। परफेक्ट प्लानिंग करने के लिए कंपैरेटिव करना ही पड़ता है। अभी फॉर एग्जांपल आपको पता रहेगा नहीं शायद से, क्योंकि 2 या 3 साल पहले ओला आया। ओला इज नॉट an old company in our India. Ola launched something 3 or 4 years back only. जब भी उसने लॉन्च किया था ना, तभी उसके पास कोई डेटा ही नहीं था। इंडिया कैसा फ्लो करता है, इंडिया का पब्लिक फ्लो कैसा जाता है, इंडिया का पब्लिक के दिमाग में क्या है, कुछ नहीं मालूम। What they had done? They had started by giving a free service. First write free, second write free, third write 50% and so on. क्यों कर रहे थे? They want to collect the data. एक बरस वो लोग ने डेटा को कलेक्ट किया एंड देन उस टाइम पे रेट कम रखा था। रेट वाज नॉर्मल, कुछ नहीं था रेट। कभी भी जाओ, सुबह 9 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 1 बजे जाओ, 5 बजे जाओ, कभी भी कहां पर भी जाओ, रेट इज फिक्स। क्यों? क्योंकि दे वांट्स टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द पीपल। अब उन लोग के पास इफेक्टिव डेटा आ गया, तो आपके जैसा जो बंदा काफी अच्छा था ये सब सब्जेक्ट में, स्टैटिस्टिक्स में, उसको बिठाया और उसको बोला स्टडी कर, कंपैरेटिव कर, कौन से टाइम पे कौन सा बंदा किधर और कितना मेरा कैश फ्लो ज्यादा आता है बता मुझको। तो स्टडी हुआ और उसको पता चला पीक आवर्स है, इंडिया का पीक आवर्स फ्रॉम सबब टू टाउन इज 9 o'clock। या तो सबब से किधर भी जाने का रहेगा, ये टाइम पे ट्रैफिक बहुत होता है, आपका फ्यूल ज्यादा यूज होता है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, और पब्लिक आपको पैसा देगा जो मांगेगा वो। 9 to 11 चेक कर लो, कल सुबह बैठ के चेक करो, 9 बजे एक डेस्टिनेशन डिसाइड करो कि ये डेस्टिनेशन पे जाने का है, डालो, जाने का नहीं, खाली डाल के देखो, आपको हायर रेट मिलेगा। वही सेम डेस्टिनेशन सुबह 8 बजे रखो, आपको रेट लोअर मिलेगा। दोपहर का 2 बजे रखो, लोअर मिलेगा। वापस से 5 बजे करो, रेट विल बी व्हाट, हायर। कंपनी ने देख लिया पब्लिक कितना बजे से किधर तक किधर जाता है, एंड देन बाद में प्लान बनाया कि जब भी ज्यादा डिमांड है पैसा बढ़ा दो, धक मार के पब्लिक देगा पैसा, कोई और रास्ता ही नहीं है। ये है, पहला आदत डालो सस्ता करके, आदत डालने के बाद पैसा मारो, हमेशा मत मारो, कंपैरिजन करो कौन से टाइम पे किधर क्या पैसा मारने का। हाईली फ्लक्चुएशन है साला, जिस दिन संडे को जाएगा तो अलग रेट, वही जगह पे सैटरडे को जाएगा तो अलग रेट, फ्राइडे को जाएगा तो अलग रेट। कोई जवाब देने वाला नहीं है, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड होता है। नो वन इज रेडी टू टॉक विथ। कभी कभी वो ड्राइवर भी घुमा के जाएगा तो ज्यादा पैसा मार देगा, अपन बाद में उसको बोलेगा इट इज नॉट माई फॉल्ट, यू प्लीज सी, तो वो लोग बोलते ठीक है चल रिफंड दे दिया 50 रुपए। ऐसा कितने कस्टमर रहेंगे? 10%। जो ध्यान देगा उसके साथ झगड़ा करेगा, बाकी तो चलना समझाना, 50 रुपए बदल लीजिए, छोड़ जाओ। तो ये है, कंपनी बहुत होशियार बनती है जब वो स्टडी करती है पास्ट बिहेवियर को, तो फोरकास्ट कर सकती है, कंपैरिजन कर सकती है, और ये सब चीज कर सकते हैं ओनली एंड ओनली विद व्हाट, टाइम सीरीज। आई होप सो। टाइम सीरीज का मतलब आपको मेनली आज पढ़ रहे हो ना, मैं गारंटी देता हूँ फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम, फर्स्ट ईयर ऑफ बीए, फर्स्ट ईयर ऑफ बीएमएस, फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीए, सब बजू आएगा, यही चीज आएगा। इसमें थोड़ा सा एडिशनल पढ़ेंगे आप लोग, उसके बाद सीधा एमबीए में आएगा। दिस इज द एमबीए टॉपिक, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीवेयर, आपको और किधर भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मैंने आपको बताया कोई भी बिजनेस ये 4 कंपोनेंट के ऊपर बेस्ड है, 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट time series is of what, or in another word, the business is totally based on these 4 component. First component, यहां तक दिख रहा है आप लोग? फर्स्ट कंपोनेंट इज सेक्युलर कंपोनेंट, सेक्युलर ट्रेंड बोला जाता है। सेक्युलर ट्रेंड इज व्हाट, लॉन्ग टर्म फोर्स, लॉन्ग टर्म फोर्स ड्राइविंग द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टर्म फोर्स ड्राइविंग द बिजनेस मतलब क्या हुआ बताओ? बिजनेस शॉर्ट टर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब उसका डिमांड लॉन्ग टर्म तक रहना चाहिए। उसका मतलब हुआ
बताओ, दूसरा वर्ड में गुडविल। अगर कोई बिजनेस चालू करता है, गिव द टाइम टू ग्रो, बिजनेस विल ग्रो स्टडीली, यूनिफॉर्मली एंड स्लोली। यू डोंट थिंक कि मैंने आज बिजनेस चालू किया, मैं 2 साल के अंदर 3 करोड़ का घर लूंगा। उसके लिए महा चीटिंग करेगा कि कुछ मोनोपोली वाला बिजनेस रहेगा तो बात अलग है। नॉर्मल कॉम्पिटिटिव बिजनेस करता रहेगा, 10 जन का बिजनेस चल रहा है और मैं भी उसी लाइन में घुस रहा हूं, तो नॉट इजी टू स्टार्ट द बिजनेस एंड टू स्टे इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए बिजनेस में हो तो आपका लॉन्ग टर्म फोर्स आपके बिजनेस को ड्राइव करेगा। सिंपल एग्जांपल मेरा ही लेता हूं। मेरे घाटकोपर में 3000 क्लासेस थे, फोर्स चल रहा है, सबका नाम है। मेरा एक्सपीरियंस था 22 बरस का। फर्क क्या हुआ? इरेगुलेटरी आया बिजनेस के अंदर, कोरोना आया। बहुत सारे पेरेंट्स लोग ने क्या सोचा, मतलब जरूरत क्या है फीस भरने का, पड़ेगा क्या, वैसे भी मेरा बच्चा मालूम है उल्लू ही बनाता है। यहाँ पर भी कितने जन ऐसा बनाते हैं, अब देखा ही मैं कितना जन को ऐसा निकाल देता हूँ, बनाते हैं। ये तो मैंने बहुत कम जन ऐसे पकड़े गए, बाकी के लोग ऐसा सोचते भी रहेंगे हाय आज बच गया, पर वो डर से नेक्स्ट सेक्टर में वो करेगा। पर ये सब चीज ध्यान देना, हर एक को इंडिविजुअली देखना, ये सब चीज एक गुडविल बनाए कि आप लोग को भी फ्रेंड्स लोग ने बोला रहेगा अरे जाने का है ना राजू सर के पास जा, वो कॉन्सेप्ट बराबर बताएगा, क्यों पढ़ रहा है ना वो साला मालूम पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये फीस फिर भी पेरेंट्स लोग ने देखा नहीं साला बैठेगा तो थोड़ा तो पढ़ेगा, थोड़ा तो ध्यान रहेगा, तो भी मेरे पास आके फीस भरा। 11th का एग्जाम भी नहीं हुआ तो भी रिग्रेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि सर ने पढ़ाया है, सर ने ध्यान दिया है, सर ने एग्जाम लिया है, अपडेट दिया है, हम लोग एवरीथिंग इज फाइन। इसके लिए वापस से आप 12th में भी आए 101, दैट वाज द रीजन। तो उसका मतलब क्यों हुआ वो सब चीज? क्योंकि मेरा वो लॉन्ग टर्म फोर्स था, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस काम कर गया कि मैं बच्चे लोग को किस तरह से हैंडल करूं, और वो मुझको इम्पैक्ट नहीं गिरने दिया। ग्रोथ नहीं हुआ मेरे बिजनेस में, पर डिक्लाइन भी नहीं हुआ मेरा बिजनेस। बहुत क्लासेस तो बंद हो गए, ताला मार के चले गए, कांट हेल्प, कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम लोग, ना ही वो लोग कुछ कर सकते थे, ना ही कोई कुछ और कर सकते थे। और वो सब चीज हुआ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट? लॉन्ग टर्म फोर्स था। तो ये लॉन्ग टर्म फोर्स कोई भी बिजनेस में काम करता है, वो स्लोली इंक्रीमेंट होता है, या तो वो फोर्स उसको स्लोली डिक्रीज भी करता है। ये इकोनॉमिकल अगर बात करते हैं ना, तो हमेशा वो स्लोली इंक्रीमेंट ही दिखेगा। कोई भी इकोनॉमिकल पैरामीटर, कोई भी आप बिजनेस करो, आप सोचो कभी भी खुद से बिजनेस चालू करेगा ना, गिव द टाइम टू द बिजनेस, ईमानदारी, डेडिकेशन, रात दिन मेहनत करो, कितना लगेगा मालूम है क्या? 1-2 साल नहीं, 5 से 10 साल लगेगा, तब जाके वो एस्टैब्लिश होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैंने भी 10 साल तक घर, 5 साल तो मुझे मालूम है, मैं तो घर घर पे जाके सिखाता था। द थिंग्स वाज देयर, करना ही पड़ता है। 1 क्लास वाज एट व्हाट दिस वन कुशल टावर, तो 2nd क्लास वाज एट व्हाट कामाल है, चल के जाने का, रिक्शा में जाने का, जो भी मेरे मोड था, जैसा मेरे पास इकोनॉमिकल स्टेटस था। पर मैं ऐसा नहीं बोलता था अरे कामालन में और 1 क्लास इधर आई कैन नॉट कम। मैं रहता था विक्रोली, बट आई वाज डूइंग दिस थिंग, इधर से उधर, कुशल टावर, कुकरेजा, दूर दूर तक क्लासेस, बट आई वाज गोइंग वॉकिंग एंड वी वर डूइंग द क्लासेस। Struggle is very important. Don't think that one day your business will grow up. Slowly it will grow up and it will be maintained. But social, this decreases. मतलब death rate, crime rate, वो अगर आपका society is good, then it will slowly decrease. Economical parameter will slowly increase. कोई business ऐसा होता है जो steady रहता है for a longer period of time. Stationary. There is an increment in the business, there is a decrement in the social impact, there is a certain business which are stationary होता है, कोई changes नहीं है, every year same growth rate चलता है, पर फिर आगे चल के तकलीफ भी होता है stationary होने के बाद। तो you should take care के increment economic रहेगा तो increment, social रहेगा तो decrement। कभी business stationary भी होता है जहाँ पर increment decrement नहीं दिखता है, but ये सारा factors is what secular factor। आप बोलेगा सर आपको कैसा मालूम पड़ेगा ये सब चीज?
ये सब चीज ही हमने पढ़ा। हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा, इसका ट्रेंड लाइन फाइंड करने का, एवरेज बिजनेस फाइंड करने का। दूसरा मेथड हमने इसमें पढ़ा, इट वाज ऑल अबाउट व्हाट, मूविंग एवरेज मेथड टू फाइंड द ट्रेंड। एक सिंपल लाइन ड्रॉ, ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं वो बनाने के लिए वी वर यूज ऑन मूविंग एवरेजेस। एंड तीसरा मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मेथड एंड द इंपॉर्टेंट मेथड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। 100% 4 मार्क के लिए ये सम आएगा, 3 मार्क के लिए ये सम आएगा। ग्राफिकल आने का बहुत कम चांसेस होगा, पर कुछ गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं, वो पास करने के लिए डाल सकता है। पर मूविंग एवरेज का एक सम और लीस्ट स्क्वायर मेथड का एक सम होना जरूरी है। लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं आएगा तो एक मूविंग एवरेज, एक ग्राफिकल और एक ऑब्जेक्टिव लीस्ट स्क्वायर मेथड पे आएगा। सो दिस इज व्हाट वी कैन से ऑल अबाउट व्हाट सेक्युलर ट्रेंड। उसको फाइंड किया ऐसा किया जाता है बाय 3 डिफरेंट मेथड्स जो हमने अपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा। नेक्स्ट, इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ये सब चीज आपको अभी परफेक्टली याद है। मूविंग एवरेजेस में 4 मेथड था, 3 इयर्स, 5 इयर्स एंड 4 इयर्स। लीस्ट स्क्वायर मेथड में 2 मेथड था, वन वाज ऑड डेटा एंड इवन डेटा। एंड ग्राफिकल मेथड्स में हम लोगों ने सेमी एवरेज मेथड से किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट का, इज ऑल अबाउट सीजनल। सीजनल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड है कोई ऐसा बिजनेस सीजनल ट्रेंड से चलता है? कोई है business? छतरी का। छतरी का बिजनेस अभी आया, आइसक्रीम पार्लर, मैंगो 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 सीजनल है, वेरी गुड। अभी जो जो आपके दिमाग में सीजन आया तो आपके दिमाग में आ गया, अरे मैंगो घर पे आ रहा है, मैंगो का। छतरी का घर पे बात हो रहा है, छतरी का बिजनेस। आइसक्रीम था, इस टाइम इम्पैक्ट गिर गया आइसक्रीम पे, कोरोना ने वाट लगाया, बट आइसक्रीम इज ऑल्सो इसलिए सर स्विगी पे 50% ऑफ में दे रहे क्वालिटी का। हाँ मिलता है, क्यों नहीं मिलता है। आइसक्रीम का बिजनेस है, ओलो का भी स्लैश डाउन हो गया बिकॉज ऑफ द वन इम्पैक्ट, उसके इम्पैक्ट के ऊपर भी आएंगे, इरेगुलरिटी आ सकता है कभी कभी। सीजनल ट्रेंड, खाली सीजनल ट्रेंड ऐसा मत सोचो कि बेचने के लिए होता है। सीजनल ट्रेंड को भी स्टडी किया जाता है, इसके लिए भी सम्स है, एवरेज फाइंड करना, अंडरस्टैंड करना। पर आपको F5 बीकॉम, F5 BA में, F5 थर्ड ईयर दैट इज 13th स्टैंडर्ड बोल सकते हैं, या तो फर्स्ट ईयर ऑफ योर डिग्री कॉलेज, कोई भी फील्ड में जाओ आपको वहां पर सब सिखाया जाएगा, हाउ टू फाइंड द सीजनल ट्रेंड, कि ये सीजनल ट्रेंड का मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या है, हाउ इट वर्क्स आउट, वो सारा चीज सिखाया जाएगा इन व्हाट सीजनल ट्रेंड। अब सीजनल ट्रेंड निकालने के बाद पता क्या चलता है उसमें पता चलता है बंदे को कि यहाँ पर किस टाइम पे, किस वक्त पे मुझे छुट्टी लेना चाहिए, कंपैरेटिव स्टडी, किस टाइम पे मुझे छुट्टी नहीं लेना चाहिए, किस टाइम पे मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, किस टाइम पे मैं किधर और काम कर सकूंगा। तो बहुत सारा चीज स्टडी होता है विद द हेल्प ऑफ सीजनल ट्रेंड। अभी आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप लोग गुजराती, वी गुजराती को संडे को, सैटरडे को नाइट को याद आता है कि संडे को मुझको जलेबी गाठिया खाने का है। हम लोग क्या करते हैं, संडे सुबह लाइन लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते? कोई हाँ नहीं बोलेगा, मुझे मालूम है, पर मन ही मन में सब हाँ बोल रहे हैं। हाँ, सुबह पापा ले जाते ही है स्कूटर लेके, या तो हम लोग चल के जाते हैं, या तो दादा जाते हैं। किधर जाते हैं? 2-3 फिक्स दुकान घाटकोपर पे, बराबर है क्या? वहां पर गुर्दी संडे को सुबह मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। किसका? जलेबी गाठिया, गुजराती का फेवरेट है। तो आप लोग देखना, उस दिन वो लोग का गाठिया का दुकान वाला लोग पूरा अरेंजमेंट करके रखता है। उसको मालूम है कि यहाँ पर आज संडे है, पब्लिक ज्यादा आएगा, तो गाठिया ज्यादा बनाएगा, जलेबी ज्यादा बनाएगा। सुबह से 5 बजे से उसका आदमी को बुला लेगा और काम चालू कर देगा, पैकिंग बेकिंग करके सब रेडी रखेगा। जैसा ही पब्लिक आएगा, ये लो आपका गाठिया, वेटिंग नहीं देने का, फटाफट काम करने का, ताजा ही सब ताजा, पर वो खुद जल्दी उठ के काम करेगा। सीजनल ट्रेंड एवरी संडे को ऐसा होगा, मतलब संडे को वो कोई और काम करने वाला नहीं है, जल्दी उठ के वो गाठिया जलेबी बेचेगा। ये दुकान वाला ट्रेंडिंग है, पता है, और ही हैज टू वर्क इट। शैम्पू होटल वाला मालूम ही है, कोई लेडीज घाटकोपर में क्या, कोई भी मुंबई में, कोई भी किधर भी लेडीज लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में काम करती ही नहीं। हॉलीडे, 1 डे हॉलीडे पाइजे, मतलब पाइजे, बहुत कम होता है ऐसा अच्छे, पर सब अच्छे ही है। उन लोग को भी तो हॉलीडे चाहिए किचन में से। रोज रोज तुम लोग का माथा फोड़, रोज सुबह तुमको उठाओ, खाना खिलाओ, उनको हॉलीडे कभी। तो हम लोग बोलते संडे हॉलीडे मम्मी, संडे को शाम को होटल वाले को मालूम है अपना
वीकेंड वीकडेज में कुछ भी ना हो, पर संडे नाइट को तो धंधा होगा होगा और होगा, सैटरडे या तो संडे होगा, तो वो सीजनल ट्रेंड हो गया। सीजनल ट्रेंड मैंने आपको ओला गाड़ी का बताया, 9 बजे का टाइम पीरियड, 5 बजे का टाइम पीरियड, सीजनल ट्रेंड, पता चल गया उसको मेरा सीजन कभी है, भाव बढ़ाओ। दिस थिंग इज व्हाट 101%। इवन जोमेटो, स्विगी, वो लोग भी सीजनल करता है, आप कभी चेक करना ध्यान से, साला जब भी आप लोग पीक आवर में मांगेगा तभी डिस्काउंट नहीं रहेगा, और जब भी पीक आवर नहीं रहेगा तभी भर भर के डिस्काउंट मिलेगा। तो पीक आवर में तो मिनिमम वैल्यू भी बढ़ा देते हैं, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। हाँ, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी वो स्टडी, स्टार्टिंग में कुछ नहीं था स्विगी में, आज से 2 साल पहले जब भी उसने लॉन्च किया था तभी कुछ नहीं था। अभी डेटा आ गया मतलब स्टडीज हो गया तो उसके हिसाब से मैनिपुलेशन चालू हो गया, कंपैरेटिव स्टडीज हो चुके हैं लोग के। तो सीजनल ट्रेंड, दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट सीजनल ट्रेंड। तो हम लोग को हमारा बिजनेस ध्यान देना पड़ता है, दुकान रहेगा तो देखना पड़ता है कि कौन से टाइम पे ज्यादा गिरागी आता है, उस टाइम पे कोई स्कीम नहीं, कौन से टाइम पे कम आता है गिरागी, उस टाइम पे स्कीम। वो पिज्जा एक्सेट्रा वाला भी देखो, आपको बोलता है 6 बजे के पहले आएगा तो ये स्कीम, 6 बजे के बाद आएगा तो नो स्कीम, स्कीम चेंजेस, टाइम टू टाइम स्कीम चेंजेस, डेटा अवेलेबल है, कभी कौन पब्लिक ज्यादा पैसा दे सकता है। तो सब दिस इज व्हाट कंपोनेंट ऑफ द बिजनेस कॉल्ड एज व्हाट सीजनल ट्रेंड। पर ये सीजनल ट्रेंड हम लोग बोल सकते हैं ईयरली, ये ईयरली हो सकता है, वेरी मैक्स टू मैक्स ईयरली, या तो वो वेरी होता है मंथली, या तो वो वेरी होता है वीकली, या तो वो वेरी होता है डेली, या तो वो वेरी होता है टाइम आवरली। हर बिजनेस का अलग अलग होगा। कोई ईयरली, अभी मैंगो का बात करेगा तो ईयरली बिजनेस हो गया 101%। मंथली बात करेगा तो पगार आता है आप लोग का महीने का, बराबर है, बहुत जन पगार में काम करता है, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में मैक्सिमम लोगों का पगार आता है। सबसे पहला पैसा तुम्हारा किधर जाता है? ग्रोसरी स्टोर में, डी मार्ट, बी मार्ट, वो सब हो गया, फ्लिपकार्ट, डी मार्ट, वो लोग आपको अट्रैक्ट करता है, मेरे पास डिस्काउंट है आओ। ये लोग क्या करता है, 2 आइटम में डिस्काउंट देता है और 5 आइटम का पैसा खा जाता है, और बोलता है कि मिनिमम ऑर्डर इतना होना चाहिए। वो मंथली हो गया। आप देखना एवरी मंथ के बिगिनिंग में वो लोग का डिस्काउंट स्कीम होगा। वो लोग ने पढ़ लिया हमारा सीजन इस मंथ का फर्स्ट 5 डेज, फर्स्ट 10 डेज सब ग्रोसरी दुकान का। वैसा ही कोई कोई वीकली, अभी देख लो इमेजी का ये सब था आप लोग का, सैटरडे संडे को ज्यादा गर्दी, बाकी के वीकडेज में गर्दी कम। तो स्टडी किया लोग कि कौन सा दिन में गर्दी कितना आता है, फिर उसके हिसाब से वो लोग ने स्कीम बनाया, कैसा वेडनेसडे धमाका, फ्राइडे फ्रीकिंग, ऐसा सब चीज बोल के रखा और पब्लिक को अट्रैक्ट किया, आ जाओ 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। कभी व्हेन योर ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे पब्लिक कम जाती है, सैटरडे संडे नो डिस्काउंट। वो वीकली डेफिनेटली उस टाइप का बिजनेस है। डेली बिजनेस भी होता है, मैंने बात किया आप लोग को, डेली होता है, मार्केट लगता है, वेडनेसडे का मार्केट होता है, कोई एरिया में थर्सडे का मार्केट होता है, तो उसके हिसाब से वो डेली भी चेंज होता है, डेज भी चेंज होता है। वैसा ही हमारा आवरली, तो ओला का एग्जांपल दिया, तो ये सारा एग्जांपल्स आर कमिंग इन व्हाट सीजनल, वो हमारा ईयरली में चेंज होता रहेगा, याद रखना, दिस थिंग्स विल चेंज व्हाट ईयरली। नेक्स्ट बिजनेस इज ऑल अबाउट साइक्लिकल कंपोनेंट, साइक्लिकल ट्रेंड। ये ट्रेंड आप एमबीए में पढ़ेंगे, इसका कैलकुलेशंस करना, सब करना आप 100% एमबीए में पढ़ेंगे। मतलब શું है? वही समझा रहा हूँ, साइक्लिक का मतलब क्या होता है, मैं थियरी समझाता हूँ, सम्स का कुछ नहीं है, सीजनल के भी सम्स हम लोग नहीं किए, साइक्लिक का मतलब क्या होता है। ये हमारा वापस से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, बिजनेस का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। कोई भी बिजनेस आप ऐसा मत सोचो कि बिजनेस हमेशा ग्रोथ ही करेगा, अगर उसको आप स्टडी करते हो ना, हर बिजनेस ऊपर जाता है। दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज प्रॉस्पेरिटी। हर बिजनेस में सबसे पहला काम आता है किसका? प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी आएगा ना तो ही हम बिजनेस कंटिन्यू करेगा। पर कभी कभी बिकॉज ऑफ सर्टेन रॉन्ग डिसीजन, ज्यादा माल ले लिया, माल बना लिया, पर माल बिक नहीं रहा है, इन्वेंटरी इंक्रीजेस इन द गोडाउन, माल पड़ा ही है, माल कोई खरीद नहीं रहा है, लॉकडाउन लग गया, एक्सटर्नल इम्पैक्ट आया, गवर्नमेंट का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो गया, तो क्या होगा आपके बिजनेस में? वहां पर चालू होता है स्टेप कॉल्ड एज व्हाट? रिसेशन। बराबर है क्या नहीं? होता है कि नहीं होता है?
रिसेशन, रिसेशन, यहाँ पर बिजनेस में डाउनफॉल, गिरने लगा बिजनेस, होता है। फैक्टर्स कौन सा हो सकता है? गलत डिसीजन ऑफ योर कंपनी, रॉन्ग डिसीजन आपने लिया, टाइम टू टाइम डिसीजन नहीं चेंज किया, रिसेशन चालू हो जाएगा। अगर फिर भी चेंज नहीं किया तो योर बिजनेस विल गो डाउन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्रेशन। आपका बिजनेस पूरा लॉस में चला जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड फॉर डिप्रेशन। और इतना लॉस में हो सकता है कि इंसान मर भी जाए, इतना डिप्रेशन आप। बट अगेन टेकिंग द राइट डिसीजन, प्रॉपर डिसीजन will definitely put an impact on your business, that is a recovery। होता ही है बिजनेस। कभी भी ऐसा मत सोचो कि हमारा बिजनेस एक ही फॉर्म में नीचे से नीचे गिरेगा, कभी ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं। स्टडी, टाइम सीरीज, स्टडी बोलता है एनालिसिस करो कहां पर रॉन्ग गया, एंड देन टेक द प्रॉपर डिसीजन टू कम अप। ऐसा एक आध बिजनेस बोलता हूँ आप लोग को, नोकिया नाम सुना? इतना फैंटास्टिक था कंपनी, मुझे जहां तक मालूम है 1996 से लेके 2004 तक हर बंदे के पास नोकिया था। हर बंदा हर घर पे नोकिया था और था। ये MI, FIMI, iPad, ये कुछ भी नहीं था, आईफोन वीफोन कुछ नहीं। ब्लैकबेरी नहीं, ब्लैकबेरी लॉन्च हुआ है इन द ईयर 2001-2002 में, तभी वो आया विद अ क्वाड्रा पैड, वो पूरा ये लेके आया, ABCD सब टाइप कर सकते हो ऐसा, और उसने BBM मैसेंजर डाल दिया। उसके बारे में भी बात करते हैं। यहाँ पर समझो क्या हुआ, प्रॉस्पर था नोकिया, और नोकिया को बोला गया कि सर सैमसंग इज कमिंग विद अ न्यू टेक्नोलॉजी, वी शुड इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी। सैमसंग इज कमिंग हियर विथ हिज टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। नोकिया बोला ये सब चीज चलेगा नहीं। एंड्रॉइड, the person who has started the Android software, he first came to Nokia and told, sir मेरे पास टेक्नोलॉजी है, कसम से टच स्क्रीन में ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनर विल बी देयर इन द मोबाइल फील्ड। अब हम दोनों मिलके क्या करते, पूरा रेवोल्यूशन लेके आते। नोकिया प्रॉस्पेरिटी में था, वो बात सुनने को रेडी नहीं था। एंड्रॉइड को बोला हट, तू क्या है, तू कुछ नहीं करेगा, कुछ उसने डील नहीं हुआ। He has signed the deal with what Samsung, saying that first 4 years, first 3 years, only my Android will work for you, and this will be not sell to anyone. Don't worry, आपके पास ही रहेगा ये, जो भी मैं अपग्रेड करूंगा, जो भी करूंगा, खाली आपके मोबाइल के लिए होगा। और 3 और 5 years एक बॉन्ड साइन हुआ था। आपको मालूम है क्या हुआ? नोकिया नोवेयर, खत्म हो गया नोकिया। जैसा ही टच स्क्रीन आया, पब्लिक ने हाथों हाथ ले लिया उसको। 101% सो हैप्पी। नोकिया पहुंच गया था ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन से कलर स्क्रीन में पहुंच गया था, बिग कलर डिस्प्ले भी आ गया था, वो सब टेक्नोलॉजी आ गया था, खाली स्क्रीन में टच डालने का था। और वो टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड के पास था। एंड्रॉइड ने नोकिया को बोला, नोकिया ने ना बोला, एंड्रॉइड गया सैमसंग के पास, सैमसंग ने हाथों हाथ ले लिया, सैमसंग बूस्टअप हो गया। वही पैरेलली आईफोन भी तभी बूस्टअप हुआ, और वो सैमसंग और आईफोन आया। पर एंड्रॉइड का साइन था कि दिस एंड्रॉइड विल बी देयर फॉर यू फॉर 3 और 4 years। फिर ही वाज रेडी टू सेल टू एवरीवन। फिर तो बहुत रेवोल्यूशनरी हो गया, सब लोग ने ले लिया। एंड टू मेन थिंग्स केम फॉरवर्ड, वन एंड्रॉइड एज अ सॉफ्टवेयर, अनदर iOS एज अ सॉफ्टवेयर। तो आज दो सॉफ्टवेयर ग्लोबली चल रहा है। अगर नोकिया ने तभी ध्यान दिया होता ना, तो ये रिसेशन नहीं आता, आज साला डिप्रेशन में घूम रहा है। अभी वो ढूंढ रहा है कि कुछ नया टेक्नोलॉजी लेके आओ और ऊपर आओ। उसने लाया विंडोज करके और एक सॉफ्टवेयर है, पर कोई लेता ही नहीं है इसको। सो देयर आर 3 सॉफ्टवेयर, वन इज व्हाट एंड्रॉइड, अनदर इज व्हाट iOS, एंड थर्ड वन इज व्हाट विंडोज। पर विंडोज फोन चला ही नहीं, आज भी कोई लेने को तैयार नहीं, बिकॉज इंटरफेस ऑफ સર તમારો વિડિયો બંધ થઈ ગયો.
अरे बाबा, भाग गए सब लोग। हेलो, प्रॉब्लम वॉज देयर इन माय कनेक्शन। मैं कहाँ तक आपने सुना था? टिल व्हाट यू heard मी? आपने नोकिया का बात किया था, नोकिया एंड्रॉइड आईओएस। एक मिनट रुको। बोलो, मैंने तो कहाँ तक पहुंच गया था? एनफील्ड का स्टोरी तक पहुंच गया था, एंड्रॉइड चला गया, सीसीडी चला गया, कुछ सुना ही नहीं। माइक्रोसॉफ्ट में बात करता है। एक मिनट, थोड़ा कट शॉट करूंगा फटाफट। हेलो, आर यू एबल टू हियर मी? Yes, sir. Yes. हेलो, So पण તમારું સ્પોટલાઇટ હટી ગયું છે. હા, હવે આવ્યું. ओके। वो स्पॉटलाइट हो गया मैं? Yes, sir. नहीं हुआ। Sir નથી થયા તમે સ્પોટલાઇટ. क्लैरिटी इन द टॉप। તમારો વિડિયો જ સર તમારો વિડિયો બંધ છે. अभी आप लोग ने उसका नाम सुना? एनफील्ड, बुलेट बनाने कंपनी। હા, रॉयल एनफील्ड. आपने एनफील्ड वो भी इतना प्रॉस्पर था कि पूछो मत। સર रिसेप्शन आया, તમારી સ્ક્રીન બહુ બ્લર છે. हाँ, ये My bandwidth low છે. my voice is clear. हाँ My voice सर is आवाज clear. कट हाँ, आवाज कट अटके છે, आवाज भी अटके છે હવે. I left the things, एक मिनट रुको। Now it is clear. બરાબર છે, બધું બરાબર છે. Yes. પણ તમારો વિડિયો ઓન ઓફ થાય છે. सबरा अवे नहीं स्पॉट करता है। हाँ, ओके। ना एनफील्ड भी ऊपर तक आया था, प्रॉस्पेरिटी में था, बेचारा रिसेशन हो गया, डिप्रेशन में चला गया। फिर क्या हुआ पता है आपको? पर एक दिन ऐसा आया, उसके बच्चे लोग पढ़े, देखा कि पापा ने किधर मिस्टेक किया है और एनालिसिस किया, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाई द पीपल आर नॉट बाइंग आवर गुड्स। पता चला अपना बाइक थोड़ा सा क्या है, हैवी है, कॉस्टिंग ज्यादा है और डिजाइन में कुछ लोगों को बहुत नयापन चाहिए, तो वो बच्चे लोग ने उसके अंदर डिजाइन चेंज किया, थोड़ा सा हल्का किया, प्राइसिंग थोड़ा नीचे लेके आया, कॉम्पिटिटिव, पब्लिक को अलग स्कूटर्स के साथ मैच करने के लिए, और उसने एक सेगमेंट में एंट्री मारा। कसम से वो इतना फ्लरिश हुआ कि आज एनफील्ड भी ऊपर आ गया, प्रॉस्पेरिटी में आ गया। आज उसका बुलेट भी लेने को जाएगा, इट इज इन अ वेटिंग ऑर्डर। तो वो सब चीज पॉसिबल है। फॉर दैट यू हैव टू गो फॉरवर्ड प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर स्टडीज। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, लास्ट वन इज व्हाट, इररेगुलेटरी। बिजनेस में इररेगुलेटरी आता है, ऊपर नीचे बिजनेस जाता है, इररेगुलर हो सकता है। योर बिजनेस कैन बी इररेगुलर, वो बोला जाता है इररेगुलर ट्रेंड।
मेरे को उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत ही नहीं है। यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली कोरोना कितना पेरेंट्स लोग को प्रॉब्लम भी हुआ रहेगा, बिजनेस पूरा ठप हो गया, साला ये लॉकडाउन लगा दिया, हमारा तो बाल निकाल दिया, शॉप खोलने नहीं देते हैं, कुछ काम करने नहीं देते हैं। तो बहुत सारा ऐसा बिजनेस है, होटल बिजनेस हो गया, बहुत सारा डेफिनेटली ट्रैवलिंग बिजनेस हो गया, सब कोलैप्स्ड, सब कोलैप्स। समझ में नहीं आ रहा वो लोग क्या करें। आप जाओ 5 स्टार होटल में, मैं बोलता हूँ ना 5,500 रुपए में आपको वो रूम दे रहा है। जो चीज 12,000 15,000 पर नाइट का रूम था, वो 3,500 से 5,500 में आपको 1 नाइट का रूम उधर 5 स्टार होटल में मिलता है। गुड चांस टू गो एंड एंजॉय इन दैट होटल, वेरी इजी। ये सब चीज पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटी है। यू हैव टू चेंज इन द बिजनेस, नहीं तो रिसेशन आपको डिप्रेशन में लेके आके खा सकता है। रिकवरी करो, स्टडी करो, एंड द थिंग्स शुड बी डन नाइसली। कोई लोग तो कपड़ा बनाता था, क्लोथिंग इंडस्ट्री था, तो मास्क बनाने का चालू कर दिया, कुछ ना कुछ तो बेचे यार बना के, वो अपॉर्चुनिटी देगा एंड द थिंग्स हैज बीन डन। कुछ ना कुछ तो बेच रहा था, कुछ ना कुछ तो हो रहा था, तो वो इरेगुलरिटी हो सकता है। मतलब अगर बिजनेस के बारे में बात करेगा तो ऑल टुगेदर देयर आर 4 कंपोनेंट इन एनी ऑफ द बिजनेस। सब बिजनेस में ये 4 कंपोनेंट काम करते ही है। सब बिजनेस में ये 4 कंपोनेंट डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ही नहीं, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट 101%। सारे बिजनेस में ये 4 फैक्टर्स काम करते रहते हैं। यू शुड वर्क, ये लॉन्ग टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है, सीजनल एंड इरेगुलेटरी शॉर्ट टर्म। ये क्या सालों साल तक नहीं चलने वाला है, ये क्या हर साल चेंज होता रहता है। तो ये सब फैक्टर्स आपको समझना है। 2 लॉन्ग टर्म है, 2 शॉर्ट टर्म बिजनेस है, और ये चारों 4 का मिलके एक बिजनेस पे इम्पैक्ट होता है। अगर वो चारों का इम्पैक्ट हमें फाइंड करना है तो वो फाइंड किया जाता है बाय व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। अगर चारों का इम्पैक्ट साथ में लेके हम चेक करते हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और उसका इम्पैक्ट मतलब टोटल इम्पैक्ट विल बी सेक्युलर ट्रेंड का इम्पैक्ट इनटू सीजनल ट्रेंड का इम्पैक्ट इनटू साइक्लिक ट्रेंड का इम्पैक्ट इनटू इरेगुलरिटी का इम्पैक्ट। ये सारे इम्पैक्ट हम लोग साथ में देखते हैं और फिर चेक करते हैं कि टोटल इम्पैक्ट इन द बिजनेस क्या है, एंड अकॉर्डिंगली रेट निकाला जाता है। मतलब सीजन के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होता है। मेरे को रिसेशन आ रहा है, मुझे दिख रहा है, तो मैं शायद से डिस्काउंट करके वो माल बेच दूं और नया माल को लेके आके मैं वापस से ऊपर आ जाऊं, तो वो भी इम्पैक्ट गिर सकता है मेरा प्राइसिंग करने के लिए। तो कभी भी कोई भी चीज का, ये पढ़ाई कौन करता है? CMA स्टूडेंट, कॉस्ट निकालने वाला, MRP बनाने वाला, कॉस्टिंग करने वाला, ये सारा चीज को इम्पैक्ट को ध्यान में रख के वो कॉस्टिंग बनाता है। उसका गुडविल क्या है, सीजन के हिसाब से चेक करता है, साइक्लिकल में कौन से स्टेज पे है वो, इरेगुलरिटी आया है तो इरेगुलरिटी क्या है, ये सारे के परसेंटेज निकालता है, कितना परसेंटेज क्या क्या इम्पैक्ट है। और उसके बाद कोई भी चीज का वो प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड करता है उसका बिजनेस के लिए, और वो होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। और वो चीज को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये चारों का इम्पैक्ट निकालने का, आपको एक का इम्पैक्ट कैसा निकालने का वो सिखाया, एवरेज ट्रेंडिंग क्या चलता है वो निकालने को सिखाया। दूसरा आप सीजनल F5 में सीखेंगे फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज, साइक्लिकल एंड इरेगुलरिटी ट्रेंड का यू विल स्टडी इन व्हाट MBA, हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग। और ये सब चीज का इम्पैक्ट निकाल के जब मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है तो ही वो प्राइसिंग निकलता है, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइसिंग निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। But there are certain business, there are business, but there are certain rare business which are independent of these all factors. है क्या कोई ऐसा बिजनेस आपको मालूम है? Essentials. एसेंशियल, पर एसेंशियल में भी सीजनल होता है, पर सबसे मोस्ट एसेंशियल मिल्क बिजनेस, जो मिल्क का बिजनेस होता है वो ये सारे फैक्टर्स को इंडिपेंडेंट है, इरेगुलर हो, साइक्लिकल हो कि सीजनल हो, उसका बिजनेस ऊपर ही परफेक्टली ही चलने वाला है, कोई भी डिपेंडेंसी रहता नहीं है। तो मिल्क का टोटल प्राइसिंग करने के लिए वो लोग उसका गुडविल, हाँ नमक पण, हाँ नमक भी, सॉल्ट भी, जिसका प्राइसिंग एकदम से बढ़ता नहीं है, वो ये सब बिजनेस होलसेल का जो बात करें ना वो लोग के लिए बोल रहा हूँ, रिटेल शॉप का तो बात नहीं कर रहा हूँ, होलसेल का जो मार्केटिंग जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोग के बारे में बात करता है।
वो इंडिपेंडेंट बिजनेस है ये, और वो इंडिपेंडेंट बिजनेस में वो लोग क्या करते हैं, ये फैक्टर्स को ऐड करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव मॉडल। बहुत कम बिजनेस है जो इंडिपेंडेंट होते हैं, रियलिस्टिक नहीं दिखता है हम लोग को, जहां पर ये सारे मॉडल्स का हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव मॉडल टू फाइंड आउट द प्राइसिंग ऑफ एनी गुड्स। तो गुड्स का प्राइसिंग करने के लिए दो मेथड, दो मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल एंड एडिटिव मॉडल। एग्जाम में आप पूछ सकते हो सर क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव खाली पूछेंगे, इफ दिस फोर फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट which type of model we will use? We will use what? Multiplicative model for finding out the costing of the price or costing of that goods. वैसा ही अगर इंडिपेंडेंट है तो which model we will use? We will use what? Additive model. दूसरे भाषा में बोलते हैं in additive model dash is about the component. Components are independent. In multiplicative model, components are interdependent. Word interdependent, independent. एग्जाम में मिस्टेक नहीं करने का, इंडिपेंडेंट मतलब ऐड करो, इंटरडिपेंडेंट मतलब मल्टीप्लाई करो। तो कोई भी चीज का कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है बिजनेस इंटरडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, और उसके हिसाब से दो मॉडल्स बने हुए। तो ये आपका पूरा टाइम सीरीज जो पढ़ा था हमने, सेक्युलर ट्रेंड का सम्स करने का सीखा, ये सारा चीज थियरी था। क्यों करते हैं? टू फाइंड द कॉस्टिंग ऑफ एनी गुड्स। गुड्स का कॉस्टिंग क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए, वो सब चीज हमें क्या सिखाता है, टाइम सीरीज। आज पढ़ रहे हो, ये सब चीज आपको वापस से एमबीए में पढ़ने को आएगा। कुछ डाउट है तो पूछो, और यू कैन लीव। बाय सर, थैंक यू। सर थैंक यू सर। Bye, sir. Thank बाय you. सर, थैंक यू, बाय। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय 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 बेटा। बाय सर। बाय। चलो हाँ बोला आर्यन। ना सर, जाऊ Bye, लीव bye. करतो तो। बाय सर। ओके, कशिश जय, कशिश संघवी चली गई है खाना खाने के लिए। चलो बाय सर। बाय करण।